Right to property is not a fundamental right. This you all know. But do you know that it is a constitutional right? It is a statutory right, and at the same time, it is a human right. I am Bhumika Indori, Product Coordinator for Legal Edge After College. In this video, I will be discussing set of 6 questions taken from CLAT PG 2021 paper. These questions are from Constitution of India, and specifically in this passage, they're dealing with right to property. So without wasting time, let's see what first question says. It says right to property cease to be a fundamental right by the. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4 अमेंडमेंट में से कौन सी अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी राइट बना दिया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, विच इज 44th Amendment Act 1978. Now, यहाँ पे मेरे को आपको एक बात बतानी है that we have made a PDF, a document in which we have incorporated all the questions which has been asked yet in CLAT PG paper related to amendments, right? Plus उसमें हमने 1 से लेके 105th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक सारे इनकॉर्पोरेट किए हैं। दैट इज अ एग्जॉस्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट, आई वुड से। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई suggest you to download that document and revise and re-revise that document, because my experience says that every year consortium in CLAT PG asked around 3 to 4 questions from amendments. So आपके पास एक consolidated form में एक आपके notes होंगे amendment के, so it will be very helpful for you. Next, one more thing which is very important here to mention is the purpose behind the series. So as you all know, this series is all about previous year question paper, and here we are doing the in-depth analysis of previous year question papers. I already have made part 1 of this video where I have discussed 6 questions. It took me 20 minutes to discuss those 6 questions. Why? Because I have discussed around 12 केस लॉज इन दो 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो पर्पस हमारा है वो यही है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाने कि क्लैट पीजी में जो सवाल आते हैं वो किस टाइप के हैं, आपको तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है। डू यू हैव टू रीड मोर केस लॉज और मोर अमेंडमेंट्स और न्यू डेवलपमेंट्स इन लीगल एस्पेक्ट, और डू यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। सो इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए हम इस सीरीज को लेके आए हैं। एंड इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, देन फॉर यू दीज वीडियोस, दिस होल सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। नाउ बाकी अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस डॉक्यूमेंट में आपको सारे अमेंडमेंट्स के बारे में मिल जाएगा, तो 44th अमेंडमेंट को भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक जो अमेंडमेंट है वो है 69th अमेंडमेंट। नाउ 69th अमेंडमेंट जो कि 1991 में हुई थी, इससे इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 239 double A and Article 239 AB. Now these two articles deals with National Capital Region of Delhi, और उसमें भी Legislative Assembly and Council of Minister को बनाने की बात की गई थी। Now 42nd Amendment is also known as mini constitution. It is very important, और इसके बारे में भी इस डॉक्यूमेंट में आप पढ़ सकते हैं। Why? Because ये ऐसी अमेंडमेंट्स है जिनमें इतनी सारी चीजें हुई हैं कि इट्स नॉट ह्यूमनली फीजिबल कि मैं सारी चीजें आपको यहाँ बताऊं। सो what max I can suggest is to go and read that document. Next is 71st Amendment. Now 71st Amendment deals with language. Okay, it deals with language. जब हम language की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है 8th schedule. So as you all know, Constitution of India में total 22 schedules हैं, sorry, total 12 schedules हैं, जिसमें से 8th schedule जो है, जो कि लैंग्वेज से डील करता है, जिसमें टोटल 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है। 8th schedule में 71st अमेंडमेंट से 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। वो लैंग्वेजेस थी नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, विच डील्स विद in which of the following cases Supreme Court of India held that provisions of law seeking to divest the right provided under Article 300A of the Constitution must be strictly construed? 4 ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि जब भी ऐसा कोई इशू है जहां पे आर्टिकल 300 में जो प्रॉपर्टीज के राइट दे रखे हैं उनको कम करने की बात है, उनको रिस्ट्रिक्ट करने की बात है, डाइवर्स्ट करने की बात है, तो ऐसे केसेस में जो लॉज हैं उनको स्ट्रिक्टली पढ़ा जाएगा। ऐसा किस केस लॉ में हेल्ड हुआ था? तो दिस वाज हेल्ड इन द केस लॉ ऑफ एन पद्मम्मा वर्सेस
S. Ramakrishna Reddy, which was decided in the year 2008. As it was a landmark judgment of that time, that's the reason they have asked a question related to दिस पर्टिकुलर केस लॉ। तो इस पर्टिकुलर केस लॉ में यही कहा गया था कि जब भी बात डाइवेस्ट करने की होगी राइट टू प्रॉपर्टी को, तो वहां पे जो लॉज को पढ़ा जाएगा वो स्ट्रिक्ट मैनर में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट केस लॉ को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इट सेज right to property is a basic human right. Which of the following statement is true regarding human right? तो चार statements provided है, चारों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि right to property जो है ना, वो एक basic human right है। अब statements क्या कहते हैं? Human rights have been considered in a realm of individual rights such as right to shelter, livelihood, health, employment. Excuse me, this is right. Why? We all know human rights में लाइवलीहुड, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, राइट टू शेल्टर, ये सारी चीजें आती हैं। दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। ह्यूमन राइट्स हैव गेन्ड अ मल्टी फेसेटेड डायमेंशन, ये भी सही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन राइट्स जो है उसमें काफी चीजें, काफी डायमेंशन इंक्लूड हो रहे हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन, ह्यूमन राइट आर स्टैट्यूटरी राइट्स, तो ये गलत है। व्हाट इज स्टैट्यूटरी राइट? स्टैट्यूटरी राइट वो राइट होते हैं जो स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड हो। स्टैट्यूट मतलब एक्ट्स, लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर ने एक्ट्स प्रोवाइड किए हैं उनमें जो राइट प्रोवाइडेड है। फॉर एग्जांपल, इफ सर्टेन राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी, सीपीसी, टीपीए, एनी स्टैट्यूट फॉर दैट मैटर, तो उसे हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी राइट। हाउएवर ह्यूमन राइट के लिए कोई स्टैट्यूट, कोई कोडिफाइड लॉ या लेजिस्लेशन नहीं है, एंड दैट्स द रीजन इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी राइट। सो आंसर क्या होगा? D, because both A and B statements are correct. Now, question number 4 says, eminent domain is defined as. तो eminent domain का क्या मतलब होता है? तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ, उसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे। नाउ, eminent domain का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है उसके पास राइट है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को ले सकता है। किस चीज के लिए? पब्लिक यूज के लिए, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग यू फेयर कॉम्पनसेशन। और ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट को आपकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमिनेंट डोमेन। ओके, नाउ ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन पहला कहता है द पावर ऑफ सॉवरेन टू टेक पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज विद द ओनर्स कंसेंट। मैंने आपको क्या बताया? एमिनेंट डोमेन में ओनर की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ सॉवरेन टू टेक पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर प्राइवेट यूज, ये भी गलत होगा। मैंने आपको बताया कि किस यूज के लिए प्रॉपर्टी ली जा सकती है? पब्लिक यूज के लिए। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ सॉवरेन टू टेक प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज विदाउट ओनर्स कंसेंट अपॉन द पेमेंट ऑफ जस्ट कॉम्पनसेशन, तो ये करेक्ट डेफिनेशन है। मैंने आपको बताया है कि एमिनेंट डोमिनेंट में क्या होता है कि जो सॉवरेन, जो गवर्नमेंट है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी को लेती है, फेयर उसको कॉम्पनसेशन देती है, और ऐसा करने के लिए उसे उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी का जो यूज है वो पब्लिक यूज होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज question number 5, which says, according to which of the following jurist property is the objective manifestation of पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। चार ज्यूरिस्ट के नाम दे रखे हैं और बोला जा रहा है कि कौन से ज्यूरिस्ट ने ये बात कही कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल का एक ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है, राइट। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं मेटा फिजिकल थ्योरी, ठीक है। एंड इसके प्रोपाउंडर या चीफ हम बोलेंगे एक्सपोनेंट्स थे, एक तो हीगल और एक थे कांत। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। आंसर क्या होगा? बी। हीगल एंड कांत ने बोला था कि जो प्रॉपर्टी है उसका वो पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल का एक ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है, और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था प्रॉपर्टी इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच पर्सन्स विल लाइज। पर्सन की जो विल है वो प्रॉपर्टी पे लाए होती है। एक ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपर्टी है उसकी पर्सन या पर्सन की पर्सनल विल लाए करने का। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ एक और चीज जो इससे क्लियर होती है वो ये है कि देखो यहाँ पे जो एक्सर्प्ट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से था, जो मोस्टली डील करता था आर्टिकल 300 ए से।
However, जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी है, सो दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट से मिक्स अप करके पूछ लिए जाएं, एंड दैट इज द रीजन वी ऑलवेज एडवाइज यू नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, एंड सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर करके एग्जाम हॉल में जाएं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच सेज which of the following statements is true regarding right to property? अब चार स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है when it comes to right to property. Now, पहला ऑप्शन है right to property is recognized as पार्ट एंड पार्शल ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. अब आपको पता होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको प्रोवाइडेड है आर्टिकल नंबर 21 में, और आपको ये भी पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है, मतलब ये कहाँ फॉल करता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल नहीं करता है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा. दूसरा ऑप्शन है right to property is recognized as part and parcel of right to carry on occupation, trade and business. Now, right to carry on occupation, trade and business falls under Article 19. Again, Part 3 का ये part है, but right to property is not the part of Part 3. That is the reason this option is again wrong. Now, third is right to property is not a basic feature of the Constitution. This is absolutely correct. Right to property कोई basic feature नहीं है Constitution का. चौथा ऑप्शन कहता है राइट टू प्रॉपर्टी इज एन इनएलियनेबल राइट. यहां पे बोला जा रहा है इनएलियनेबल का मतलब होता है नॉन ट्रांसफरेबल. ठीक है, हाउएवर राइट टू प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफरेबल राइट, एंड दैट इज द रीजन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ, आपने ये 6 क्वेश्चंस देखे, आपको ये समझ आया कि कैसे क्वेश्चंस क्लैट पीजी में पूछे जाते हैं, हाउ यू हैव टू स्टडी, हाउ मच फोकस यू हैव टू पुट इन ऑन अमेंडमेंट्स, ऑन केस लॉज, ऑन jurisprudence and etc. Do not forget to subscribe to this channel because on this channel we time and again provide this kind of in-depth information. So here our point is not to just go with the answer, सिर्फ आपको आंसर टिक करवा दिया जाए. यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो ये है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो काफी कंसोलिडेटेड फॉर्म में हो और काफी इलैबोरेट एंड डीप मैनर में हो, सो दैट आपको वो आने वाले 2022 2023 के क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, बाकी सारे एलिमेंट एग्जामिनेशन, एआईबी, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करे. आई एम भूमिका इंदौरी साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.